Welcome to this 15th Sunday after Pentecost. It's been a wonderful day that God has blessed us to come to His presence again and give thanks to the Lord. We thank the Lord for all the days of our lives till now. He's been so good to us and we praise God. And I hope and pray that you must be experiencing God's presence and His power, that He's answering our prayers. And we thank the Lord for His mercy, for His grace. So let us worship the Lord today with a thankful heart and be gracious to Him for everything the Lord has done to us. Today, the theme for our worship is in the storms of life, the Lord is near at hand to save. Isn't it very true? There are storms of life. And the psalmist says, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Let the Lord redeemed of the Lord say so, whom He has redeemed from trouble, and gathered them in from the lands, from the east and from the west, from the north and from the south." You know, Psalm 46 verse 1 says like this, "God is our hope and strength in storms of life, a very present help in trouble." So let's bring our pains, our trouble, our joys before the throne of grace as we worship the Lord, as we say the prayers, as we sing praises, as we hear the word today. May Lord enrich us. And Lord help us that during these days of coronavirus, that we may not only be redeemed, that we may not be healed only, but we gain strength to stand against all storms of life. Let us adore and worship the Lord. Look to the Lord in prayer. Almighty Father, look with mercy on your church, which cannot fulfill its ministry without your aid. And all our dangers and necessities, stretch out your hand to help and sustain us. Through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. Amen. The responsive reading this morning has been taken from the book of Psalms, chapter 107, verses 23 to 30. Please respond by saying, "God is a very present help
in trouble. Some went down to the sea in ships, doing business on the great waters. They saw the deeds of the Lord, his wondrous works in the deep. For he commanded and raised the stormy wind, which lifted up the waves of the sea. They mounted up to heaven, they went down to the depths. Their courage melted away in their evil plight. They reeled and staggered like drunken men, and were at the wits' end. Then they cried to the Lord in their trouble, and he delivered them from their distress. He made the storm be still, and the waves of the sea were hushed. Then they were glad that the waters were quiet, and he brought them to their desired haven. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The first reading is taken from 1 Kings chapter 19 verses 1 to 13. I repeat, 1 Kings chapter 19 verses 1 to 13. I'm reading from the New International Version. Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, "May the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that of one of them." Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servants there, while he himself went a day's journey into the wilderness. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. "I have had enough, Lord," he said. "Take my life, I am no better than my ancestors." Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once an angel touched him and said, "Get up and eat." He looked around, and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, "Get up and eat, for the journey is too much for you." So he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. There he went into a cave and spent the night. And the word of the Lord came to him, "What are you doing here, Elijah?" He replied, "I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have reached your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too." The Lord said, "Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Then a voice said to him, "What are you doing here, Elijah?" This is the word of the Lord. Thanks be to God. Reading from the Epistle of James, chapter 1, verses 2 to 8. James, chapter 1, verses 2 to 8. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him.
But let him ask in faith, with no doubting. For he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double minded man, unstable in all his ways. This is the word of God. Thanks be to God. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। The Gospel reading this morning has been taken from the Gospel according to Matthew, chapter 14, verses 22 to 33. Immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side, while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone, and the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it.
Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I. Don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried, "Lord, save me." Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God." May God add his blessings to the reading and hearing of his word. In our intercession, let us join our prayer for the whole human family with the unceasing prayer of Christ the Lord. Heavenly Father, we pray for justice and peace in the whole world and in the midst of the present challenges due to coronavirus, the fullness of life for everyone. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all who live in Delhi and NCR, for the removal of all that divides us from each other, and for true harmony in our country. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all engaged in agriculture, industry and commerce, for all workers skilled and unskilled, and for all those who defend our country, especially at our borders with Pakistan, Nepal, and China. Lord, in your mercy. For teachers and students, scientists, artists, and writers, and for all who influence the minds and hearts of others. Lord, in your mercy, hear our prayer. For those who are suffering, the poor and hungry, especially for the migrant laborers and their families, and those who are facing difficulties due to the recent floods. We especially pray for those affected by COVID-19 and those who are caring for them. We pray for the medical professionals, scientists, the establishment, and the volunteers. Lord, in your mercy, hear our prayer. For all to whom authority is entrusted in this and other countries, especially for our President, the Prime Minister, the Chief Justice of India, the Lieutenant Governor, and the Chief Minister of NCT of Delhi, and for all who have power over other people. Lord, in your mercy, hear our prayer. For the unity of all Christian people and for their witness and service in the world. Lord, in your mercy, hear our prayer. For your whole church in our country, for its councils and leaders, especially for P.C. Singh, our moderator, A. Dharmaraj Rasalam, moderator of the Church of South India, Joseph, Metropolitan of the Marthoma Church, for Varis Masih, our bishop, for Timothy, Dennis, and Jayakumar, our presbyters, and for all other ministers of your church, that they may be faithful in your ministry. Lord, in your mercy, hear our prayer. That with all your people who have faithfully served you in this life, we also may share in the eternal joy of your kingdom. Lord, in your mercy, hear our prayer. Let us say together, hasten, Heavenly Father, the coming of your kingdom, and grant these petitions which we offer in the name of your Son,
our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Hallowed be thy name. As in heaven, so on earth, hallowed be thy name. Give us this day our daily bread. Hallowed be thy name. And forgive us, Father, all our debts. Hallowed be thy name. As we forgive all our debtors. Hallowed be thy name. And lead us not into temptation. Hallowed be thy name. But deliver us from all evil. Hallowed be thy name. For thine is the kingdom, power, and glory. Hallowed be thy name. And forever and ever. Hallowed be thy name. Amen, amen, it shall be so. Hallowed be thy name. Amen, amen, it shall be so. Hallowed be thy name. The Lord Jesus said, "The Lord our God is the only Lord, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength." This is the first commandment. And the second is this: love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. God so loved the world that he gave his only Son, Jesus Christ, to save us from our sins, to be our advocate in heaven, and to bring us to eternal life. Let us therefore confess our sins in penitence and faith, firmly resolved by God's grace to keep his commandments and to live in love and peace with all people. Let's all say together the prayer of confession. Almighty God, our Heavenly Father, we have sinned against you and against one another in thought and word and deed, in the evil we have done and in the good we have not done, through ignorance, through weakness, through our own deliberate fault. We are truly sorry and repent of all our sins. For the sake of your Son, Jesus Christ, who died for us, forgive us all that is past, and grant that we may serve you in newness of life, to the glory of your name. Amen. Almighty God, who forgive all who forgive one another and truly repent of their sins, have mercy on us, pardon and deliver us from all our sins, confirm and strengthen us in all goodness, and keep us in life eternal, through Jesus Christ our Lord. Amen. Thanks be to God. As this is the prayer of confession, and as we pray together, the Bible tells us that we must be in peace with each other and with Lord Jesus Christ. And let us share the peace of the Lord with each other as we worship him. We are the body of Christ. In the one Spirit we were all baptized into one body. Let us pursue all that makes for peace and builds up our common life. The peace of the Lord be always be with you.
God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Lord, the words of my mouth and meditations of our heart be acceptable in your sight. O God, our Redeemer, Sustainer and Healer. In the name of Lord Jesus Christ I pray. Amen. The theme for the today's meditation is, in the storms of life, the Lord is near at hand to save. In the storms of life, the Lord is near at hand to save. We have read 3 Bible portions. A story related to Elijah from the book of Kings. A story, a miracle, when Jesus walks on the water and how he helps Peter and save him. So that is from the book of Matthew, and we also had 3rd portion from the book of James. So storms of life and the Lord, these are the 2 important concepts in this theme, and we need to try to understand these 2 concepts prior to we go deeper in the text and get the meaning for our life, to take necessary decisions to make our life acceptable in God's sight, and be assured that God is with us. God is there to save us in the storms of life. So first of all is the storms of life. In the normal, simple understanding, we can consider storms as a problems in our life. Problems, essentially, things those are overwhelming. We are not able to comprehend. We are not able to understand. The situation that is beyond our control, the situation is beyond our capacity to manage, to govern. And we feel inadequate. We feel very weak. We don't know how to deal with that. And when we are in such situations, we feel we are in a problem. There is a storm in our life. The second concept is the Lord. So what is in the Lord? Lord, the Adonai, means ruler and the master, who has the power and authority to change the thing, who can change the situation, who has a capacity that overpowers that situation under which we feel very, very underwhelmed, very, very weak. The Lord, who is omnipresent, who is omnipotent, can manage this situation. So what does it mean? In the storms of life, the Lord is near at hand to save us. So in the problems, the Lord is there to save us. But the issue is that, are we looking, Lord, only to solve the problems in our life? So from this Bible text, we will understand what was the problem, what was the solution, and what was the process of that solution. An important thing, what was the purpose of that solution? Often, we are interested to solve the problem on our own terms. When we get into some trouble, some problem in the storms of life, we have some predetermined solution idea of a present help. We have an idea how this situation can be better, different, when we are feel happy, when we are together, when we are at comfort, we are at peace. And that is the problem. The problem is not that we are in situation that overwhelms us. The problem is not that something that is beyond our capacity. But essentially the problem in our life, we do believe and we do understand there can be a situation, there can be place which can be better according to our understanding than the today's situations. Where are we?
And we would like to walk, we would like to reach to that place of comfort, to that place where we feel joyful, happy and peaceful. Why the Lord is required. And that is the problem that we need to understand. When Jesus healed man on the Sabbath day, when Jesus healed a blind man who was blind from his birth, when Jesus raised Lazarus from the dead, what was his purpose? His purpose was that by that healing, the Lord, the Son of God, will be recognized, and the people in and around there will have faith in Son of God. The power and authority of the Lord Jesus Christ will be known to everybody. But the Jesus do not want that power to be known, that He is mighty and powerful. He is. Essential purpose of that resolving a problem, resolving a difficult situation, that Jesus wants that we need to be transformed. We need to be changed. Our identity is renewed. When we accept the Lord Jesus Christ as the Son of God, as our personal Savior, essentially our situation change. So it is not the solution that we are looking for, that is a solution. But for Lord, the purpose and the process of resolving the solution, that is being together with the Lord and identifying Him as the Son of God, that process of being with the Lord and walking with Him, the journeying with Him, is the most important solution. And that we need to identify. So what did it happen in these 3 verses? In the Old Testament story, we read the story of Elijah. We see here, Lord speaks to Elijah. Elijah is in trouble. In the chapter 18, prior to that, we read Elijah has overcome the challenge of prophets of Baal. More than 4,000 prophets has been slain there. The power and authority of the Lord has been revealed. But the same Elijah, when we recognize that Jezebel is looking for him, and she is very, very vicious in heart, he ran from the situation. He ran for his life. And we say that Elijah wanted to save his life. He's tired, he's fatigued, and he's running away from Jezebel. He's running to wilderness. And there he finds the Lord. He has an encounter with the Lord. And where? On the top of the mountain. On the top of the mountain, he's waiting for the wind. Because when the wind will pass through, the Lord is going to meet him. So Elijah is in problem of his life, and he wants to save his life. But what is the solution? And the solution, we need to understand what is the process for that. In the gospel reading from the Matthew, we read a miracle. Jesus walks on the water. He was alone. After his prayer, the boat was far away, beaten by the waves. Wind was against them. At the 4th watch at the night, in such a difficult situation, Jesus was walking on the sea. And when Peter walks towards him, he walks, but then he looks the situation and he feels inadequate. And that fisherman whose life has gone on the sea, his life has gone on this river, he could not control and is about to drown. When Jesus extends his hand and Jesus saves him.
So our personal issues, our education, study, exam, job, marriage, children, promotions in job, sickness, illness, these are all the problems. But in our intercession, we pray for peace and justice. We pray for the people who are governed, who protect, people who are in agriculture, students, those are sick and dying, and those are helping them. But those who are really, we are connected with those people who are really in situations, do we feel something to them? We need to understand it. But the Lord heals, Lord protects, Lord provides, only to glorify Father, no other purpose. Only to glorify Father. So people should believe in Him, in the Son of God, the Father as a Savior from His sin. We see in the Elijah story, Elijah is there. After the wind, there was a first, when he was on the rock, then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord, but the Lord was not in that powerful wind. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire, but the Lord was not there in the fire. But after the fire came a gentle whisper. And when Elijah heard a gentle whisper, he pulled his cloak over his face, because he knew the Lord is there. Then a voice said to him, "What are you doing, Elijah?" So this process of solving a problem, that we need to understand, the encounter with the Lord. Understanding the Lord as our personal Savior, who is in control of the situation. He's not control of only our own life, but He's also control of the situation around us. But we seek Lord only to come out of the problem, and we feel that we will be comfortable on another bank, on another situation, another kingdom, in the rule of the another queen or the king, then we are making a mistake. Our solution can be whatever may be the problem, whatever may be the situation, whatever may be the challenge. The Lord is with us. I have been saved, and that is a solution. But we are not ready for that solution. That is our concern. And we need to find, in today's situation, we know what are the problems are there today. Today, pandemic, death and fear, job loss. More than 2 crore people in the organized sector has lost job. And we know the woes of the migrants. They walk to their villages, they have lost their job and livelihood, they don't have future. The war-like situation, what we call a 2.5 war, enemies around us. We have problem of growing hatred and intolerance in our own friends WhatsApp group. Forget in our own dining table at our home that we are divided, we are not together. We are very, very polarized as a society, we are polarized as a nation, and we are polarized as a family. That's the problem we have had. We feel the economy, such a loss. GDP 23% negative. Schools are closed, children are not able to go to the schools. There is a big digital divide. Only the rich children who have access to technology are receiving education. Do you feel some pain? Do you feel some agony? Or we are only worried about ourselves? Are we identifying the Lord who is in control, the Lord who is sovereign, and recognizing Him, accepting Him as our personal Savior can resolve the problem? So there may be an endemic, there may be COVID, but the Lord will sustain us in this COVID situation. COVID situation will not go properly. The infection rate is increasing. More than 90,000 per day the patients are affected. Daily more than 1,000 people are dying because of the COVID. But the Lord will enable us. Lord will enable us. Lord will bless us.
to be adequate in these situations. Why to be adequate? Only to save the people with COVID with love and care. If these are the problems and we find the Lord has found a solution in the life of the Peter, in the life of Elijah, how we can find a solution for this problem around us and problem that we are facing. And the second is this. The Lord said, love your neighbor exactly like you would like to love. In the gentle whisper, after that, Elijah had an encounter with the Lord. A gentle whisper of love, a gentle whisper of acceptance, a tolerance, being together. We can find solutions. We can find happy place to live together. Problems may be overwhelming, but the power of love can overwhelm in any other situation, in any other surrounding. And that love we can extend only we recognize that God is love. And we will able to love our human beings, our colleagues, only we accept the Lord is with us and we will save him. So are we able to find solutions to the problems of this world? We know that in the storms of life, the Lord is there to help us, to save us. And Lord wants us to be his partner, to be his colleague, to be his co-redeemer, to save this world, to take this message of hope, to take this message of love to those who are hungry, to those who are thirsty, those who are naked, those who are in prison, those who are in lonely. And whatever be the overwhelming situation like pandemic, fear, job loss, economy, the power of love, the love of Lord Jesus Christ has capacity to change situation, everything. Let us believe love changes everything. The power of love of Jesus Christ, of spirit of service and sacrifice of the Lord Jesus Christ can save this world, can redeem this world, and can bring change in our life. And in that process, we believe and we accept the Lord God is my personal Savior. And the purpose to bring glory to the Lord, to glory to the Father, is being achieved. So let us not find the solutions what the world look for. Let us not find the solutions what we have predetermined. The solutions, let us work with the Lord. Pray with the Lord. Pray for justice. Pray for peace. Pray with love, for love. And that is the way we can find the solutions for the situation around us and situations we are around. To express that love, to receive our fellow colleagues with love, to accept them, to love them, our citizens, without any bias, without taking in consideration of the caste, color, creed, religion. If you are able to accept everybody, we can find the solution for the problems we are. Lord wants us to save his people. Lord wants us to heal his people, to reach to those who are hungry, thirsty, those are lonely, those are in prison. Let us overcome this hatred. Let us overcome prejudices. Let us overcome those biases. And let us, like Christ, accept everybody with love, with tolerance, and bring glory to the Lord's name. To that end, to be his disciple, to be his follower, to open our hearts to others, to open our homes to everybody. May Lord our God will bless us. The master, the ruler, will change us to find the change in this world to be his dwelling place. May God add his blessing on each and every one of us to be his disciple. Amen. Let us all affirm our faith and say together, we believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth,
we believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, one in being with the Father. Through him all things were made, for us and for our salvation. He came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He was born of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day he rose again, in fulfillment of the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory, to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism of the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and the love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit, be among us and remain with us always. Amen. Dismayed, whatever betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Through days of toil when heart doth fail, God will take care of you. When dangers fills your path assail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. No matter what
take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Amen. आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 15वां रविवार है और आज की सुबह हमारे लिए मनन चिंतन करने का विषय है जीवन संकट के समय हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु हमारे समीप है। और आज परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सिर से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सिर से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे देता है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे देता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सिर से चराता वो है। शत्रुओं के सामने
आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम सभी दया याचना की प्रार्थना में शामिल हो। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, क्रीस्त हम पर दया कीजिए, क्रीस्त हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता, अपनी कलीसिया पर कृपा दृष्टि कीजिए, क्योंकि वह आपकी सहायता के बिना अपनी धर्म सेवा नहीं कर सकती। पिता, अपना हाथ बढ़ाइए और सब संकटों और आवश्यकताओं में हमारी सहायता कीजिए और हमें संभालिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 107, 23 से लेके 30 आयत तक। आप कृपया उत्तर दें। परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वो गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वो आज्ञा देता है, तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते, फिर गहराई में उतर आते हैं, और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं, और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं, और वो उनको सकेती से निकालता है। वो आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं, और वह उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। सभी को जय मसीह की। आज का पहला पाठ मैं आपके सामने पढ़ूंगी, जो कि पुराने नियम से लिया गया है। पहला राजा उसका 19वां अध्याय 1 आयत से लेके 13 आयत तक। पहला राजा उसका 19वां अध्याय 1 आयत से लेके 13वीं आयत तक। तब आहाब ने इज़ाबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इज़ाबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया।
परंतु वह स्वयं जंगल के एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वे झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के लिए मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगीं। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक और शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 2 से 8 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको भी दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय और 22 से लेके 33 आयत तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और साँझ को वो वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा,
आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुनने जाने पर आशीष दे। आइए परहित निवेदन में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुवे, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य श्री धर्माराज, और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन श्री जोसेफ, हमारे धर्माचार्य वारिस मसीह, हमारे पुरोहित टिमोथी शॉ, पादी जय कुमार, और हमारे ले रीडर आशीष अनुराग, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, आइए एक साथ बोलें, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए।
और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, ज़र और ज़मीं का जलाल है, हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन 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 आमीन। पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वे हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसीलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। शांति है न्यारी।
दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। हम दो सदा हम मिल गाए, तेरा शुक्र करें। हम दो सदा हम मिल गाए, तेरा शुक्र करें। बुलबुल गाए, झूमे डाली, नाचे धरती सारी, नाचे धरती सारी। तू ही दाता, देश में दाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। हाथों जोड़े, दिल को खोले, आए हैं शरण तेरी। हाथों जोड़े, दिल को खोले, आए हैं शरण तेरी। पापों को प्यारे प्रभु क्षमा कर, जान मेरी ये पुकारे, जान मेरी ये पुकारे। तू ही दाता, विश्व में दाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके वचन को पढ़ सकें, उसको मनन कर सकें और अपने जीवनों को उसके प्रकाश में जांचने वाले हो सके। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। एक बार फिर से प्रभु जी, आपने हम में से प्रत्येक को जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा है, भला चंगा रखा है, संभाला है, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है। बीते हफ्ते आपने संभाला, हमारी मदद की, सहायता की, हम आपका शुक्र करते हैं। हमें संभाला, हमारे परिवार के लोगों को संभाला, हमारी रक्षा की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि इन सब चीज़ों के बावजूद जो हमारे चारों तरफ होती है, हम आपके वचन को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और उस पर मनन कर सकते हैं। जबकि आज एक बार फिर से आपके वचन पर मनन करते हैं। आप हम सबके साथ होना प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा हमको देना ताकि हम आपकी बातों को समझ सकें, अपने जीवनों को जांच सकें और सही मार्ग पर चलने वाले हो सके। आप हम सब की मदद करें, सहायता करें। आपके वचन से हमारे जीवनों में प्रकाश हो। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 15वां रविवार है और आज का जो हमारा प्रस्तावित विषय है आराधना का, वो है जीवन संकट के समय हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु हमारे समीप हैं। और बड़ा ही अच्छा विषय है क्योंकि मैं और आप आज जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिस सदी में हम लोग रह रहे हैं, उसमें मुझे और आपको परमेश्वर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब हमने आज के जो बाइबल के पाठ पढ़े हैं, उसमें हम पाते हैं कि हम सबसे पहले एलिया की कहानी को पाते हैं कि एलिया अपनी जान बचा, जबकि इतना विश्वासी था, बट अपनी जान बचाने के लिए वो जो है रेगिस्तान की तरफ भागता है, डेजर्ट की तरफ भागता है और वहाँ पर परमेश्वर उससे बातचीत करता है। परमेश्वर उसके दुख के समय में उसको अकेला नहीं छोड़ता, जबकि वो अपनी मौत मांगने लग जाता है, लेकिन परमेश्वर उसे अकेला, अनाथ और असहाय नहीं छोड़ता और उससे बात करता है। उसी तरह जब हमने याकूब की पुस्तक में से पढ़ा है तो हमने उसके पहले अध्याय में यही पढ़ा है कि परमेश्वर जो है जो हमारी परीक्षाएं होती हैं, उसमें परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास को और मजबूत बनाता है, उसको और मैच्योर बनाता है। तो और हमने जो फिर नए नियम में से पढ़ा है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों की मदद करने के लिए झील पर आते हैं और पतरस वहाँ पर अपने विश्वास को देखता है कि वो अभी भी कमज़ोर पाया जाता है। तो हम तीनों घटनाओं में हम इस चीज़ को पाते हैं कि परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। मत्ती की इंजील में जब हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो जो जिब्राइल स्वर्गदूत था उसने बोला था कि इसका नाम इमैनुअल है, यानी परमेश्वर हमारे साथ। तो जीवन के जब तूफान आते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जो हमने नए नियम में से आज पढ़ा है उसको हम देखते हैं कि इससे पहले जो था प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों ने जो थे करीब 5,000 लोगों को खाना खिलाया था। और
चेले जो थे वो उस वक्त भी वही कर रहे थे कि वो अपने जो रिसोर्सेज थे, उनके जो स्रोत थे, उसी से सारी चीज़ों को या समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, बट हो नहीं पाता था। और फिर उनको एक बार सीखने को मिलता है कि जब तक परमेश्वर उनके साथ है, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है, तो वो हर परिस्थिति में से उनको निकाल सकता है और बचा सकता है। जो हमने अभी पढ़ा है मत्ती 14वें अध्याय की 22वीं से 33वीं आयत तक, वहाँ उसको हम मरकुस की इंजील उसके 6ठे अध्याय उसकी 45 और 52 आयत में से पाते हैं, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6ठे अध्याय उसकी 16वीं से 21वीं आयत में भी पाते हैं। बट मत्ती एक ऐसा लिखने वाला है, इंजील लिखने वाला है, जिसने इस चीज़ को वहाँ दर्शाया है कि पतरस जो है वो पानी पर चल करके प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचने की कोशिश करता है। मरकुस में हम देखते हैं कि जब ये कहानी समाप्त होती है तो चेले जो हैं वो बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं और उनको समझ नहीं आता है ये क्या हुआ है, अचंभा होता है उनके जीवन में, सरप्राइज होता है। बट मत्ती जो है वहाँ पर, मत्ती जब इस चीज़ को लिखता है तो मत्ती दिखाता है कि जो चेले हैं वो प्रभु यीशु मसीह को एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, जब वो अपने सामने इस चमत्कार को होते हुए देखते हैं। मत्ती ने जब इस इंजील को लिखा है तो उस समय जो था, जो मसीही लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग चल रहे थे, वो बड़े सताव में थे। और करीब करीब इस वक्त ऐसा भी है कि हो सकता है कि पतरस जो है वो शायद सूली पे चढ़ा दिया गया हो, क्रूसीफाई कर दिया गया, उसे मार दिया गया हो। और ये जो दो कहानियाँ हैं यहाँ पर हम पाते हैं तूफानों की, जहाँ पे स्टॉर्म आता है, तूफान आते हैं, ये हमें बताते हैं कि जीवन में कैसे खतरे आते हैं, डर आता है, लेकिन अगर विश्वास है तो परमेश्वर हमें बचाने के लिए तैयार है। ये पैसेज जो है, ये जो वाक्यांश है, ये बताता है उस समय के मसीहों को कि चाहे तकलीफ होगी, दर्द होगा, सताव होगा, मृत्यु भी आ जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है फाइनली, अल्टीमेटली, अंत में हमें ज़रूर बचा लेगा। 22वें आयत को अगर हम इसको देखते हैं तो पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ही चेलों को बोला था कि जाओ दूसरे पार चले जाओ, मैं प्रार्थना करके आता हूँ। वो कोई अपनी मर्जी से नहीं गए थे कि उन्होंने इस मुसीबत का सामना करा कि तूफान वहाँ आ गया था, बल्कि उन्होंने आज्ञा का पालन करा था। प्रभु यीशु मसीह अकेले जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो उस प्रार्थना के महत्व को समझते थे, उस अकेलेपन को समझते थे, अपने पिता से बात करते थे। और मत्ती जो है 2 बारी इस चीज़ को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने गए। एक तो यहाँ बताता है, और एक बागे गतसमनी में जब वो गया था सूली पे चढ़ाने से पहले, जाए अपनी मृत्यु से पहले, तब वो वहाँ जाता है। और दोनों ही जो मौके थे बड़े ही मुश्किल घड़ी के थे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, क्योंकि जो अभी वो प्रार्थना करने गया है मत्ती 14वें अध्याय में, उसमें वो तब गया है जब यूहन्ना का सर काट दिया गया था। हेरोद ने उसका सिर काट दिया था, हेरोद जो काट दिया था। और अब वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ भी उसकी नज़र आ गई थी कि ये भी बहुत ज़्यादा हलचल मचा रहा है, तो मुझे इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और गतसमनी में तो हम जानते ही हैं कि वहाँ पर वो अपने आप को कुर्बान करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करने गया था। खैर, चेले जो हैं वो बिल्कुल समुद्र के बीच में हैं, और ना मत्ती बताता है ना यूहन्ना बताता है कि वो किसी तरह से डर रहे थे। बट 25वें आयत में हम पाते हैं चौथा पहर था। चौथे पहर का मतलब है कि सुबह के करीब 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच की ये बात है। चेले बड़े थके हुए थे, तूफान से वैसे ही जूझ रहे थे, वो थके हुए थे क्योंकि 5000 लोगों को खाना खिलाना कम बात नहीं होती है। और छोटी सी नाव थी जिसमें वो जो थे वो कहते हैं ना हिचकोले खा रहे थे और बड़े परेशान थे। और तभी प्रभु यीशु मसीह उस पर समुद्र पे चलता हुआ आता है। अगर बाइबल में हम बिब्लिकल लिटरेचर को देखते हैं, बाइबल साहित्य को देखते हैं, तो जो समुद्र है उसको हमेशा ऐसा दर्शाया गया है बाइबल में कि वो जो है वो एक शैतान का, जो उसकी जो शैतानी ताकतें होती हैं उसका घर है, जो कि हमेशा परमेश्वर के विरोध में रहती है। और परमेश्वर का समुद्र के ऊपर एक विशेष अधिकार है उसको शांत करने का। यदि हम इब्रानी जो हिब्रू स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, इब्रानी उसको साहित्य को पढ़ते हैं, तो उसमें पाते हैं कि परमेश्वर जो है वो पानी पर चलता है और या पानी में से अपना रास्ता बताता है। कुछ आयतें ऐसी है जो आपके सामने पढ़ूंगा जो इस चीज़ को दर्शाएंगी। जैसे भजन संहिता 77 उसके 19 में लिखा है, तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पाँव के चिन्ह मालूम नहीं होते। उसी तरह अय्यूब की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में कहता है, वह आकाश मंडल को अकेला फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। ये बात तो सब जानते थे कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। बट यहाँ पर देखिए एक मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह उस वक्त एक मनुष्य है जो कि कामिल खुदा और कामिल मनुष्य है, वो समुद्र पर चलता हुआ आता है। वो अपनी आइडेंटिटी बताता है, अपनी पहचान बताता है कि मनुष्य भी हूँ और परमेश्वर भी हूँ।
और यही मत्ती ने इस चीज़ को हाईलाइट करा था अपने इंजील में कि इमैनुअल यानी परमेश्वर हमारे साथ, मत्ती 1 उसके 23 में लिखा है। और ये कहानी जो है वो इस चीज़ को दर्शाती है, उसका ये जो रोल है, जो उसका ये काम है, उसको दर्शाती है। जब ये इंजील लिखी जा रही थी, उस वक्त की कलीसिया बहुत परेशान थी, सताव में थी, और वो कोई बगावत नहीं कर रहे थे, पर वो विश्वास योग्यता से परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, जिसके कारण उनको सताव था। और ये जो चेलों की दशा उस वक्त समुद्र में थी, यही दशा उस वक्त के चर्च की थी, कलीसिया की थी मत्ती के समय में। और ये घटना इस बात को दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह मसीहों के पास आते हैं जब तूफान आते हैं, उनको बचाने के लिए आते हैं, क्योंकि अपर हैंड जो अपर हैंड है वो परमेश्वर का है इन सब चीज़ों में, और वो उनको बचा के ले आता है, उनको छुड़ा के ले आता है। जब वो चेले प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो डर जाते हैं। तूफानों का सामना करने की तो उनकी आदत थी, बट किसी को पानी पे चलते हुए देखने से वो घबरा गए थे, उनको लगा कि कोई भूत है, उनको मुंह से भी निकला कि कोई भूत है। और उनको शायद ये भी लगा होगा कि शायद हेरोड ने प्रभु यीशु मसीह को मार दिया है, क्योंकि धमकी तो वो दे ही रहा था और उनका भूत चल के जो है वो समुद्र पर आ रहा है। बट प्रभु यीशु मसीह साफ कहते हैं, जैसे उनको देखते हैं, ढांढस बांधो। इंग्लिश में बड़ा अच्छा है, चेयर अप, ढांढस बांधो। ये कोई डांट नहीं है, ये एक तरह का उत्साहित करना है, इनकरेजमेंट है। यही चीज़ प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को भी कहते हैं जिसको लकवा मारा होता है, और उस स्त्री को भी कहते हैं जिसको लहू बहने की बीमारी थी, कि ढांढस बांधो, हिम्मत रखो, मैं हूं। और आगे कहता है, इट इज आई, मैं हूं। यानी कि पुराने नियम में एक्सोडस जो है, निर्गमन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय उसकी 14वीं आयत में कहता है कि ये जो आए है या मैं हूं, ये परमेश्वर के लिए बोला जाता है। और ये जो है ये 28 जो अध्याय है मत्ती के, उसका 14वें अध्याय में ये आता है कि मैं हूं। पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को लिंक करते हैं, अपना जो एक रिश्ता है वो परमेश्वर पिता से बांधते हैं, जो पुराने नियम में अपने लोगों को इसी तरह बचाता था जब वो उसे पुकारते थे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहा चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं कोई भूत नहीं हूँ। वो उसका अपना तरीका था कि मैं हूँ, मैं वो परमेश्वर हूँ जिसने इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की रचना की है। मैंने ही इस हवा को बनाया है, मैंने ही इन तूफानों को बनाया है, मैंने ही ऊंची ऊंची लहरों को बनाया है, इस तूफान को मैंने बनाया है। डरो मत, मैं हूँ, ये सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। और ये कहानी जो है मत्ती के उस वक्त की कलीसिया को बताती है कि चाहे कितना भी सताव हो जाए, डरना मत। हर सताव में प्रभु यीशु मसीह जो है वो तुम्हारे साथ है। और आज 2020 में जब मैं और आप इस बीमारी का सामना कर रहे हैं, तरह तरह की तकलीफें मेरे और आपके सामने आज की डेट में आ गई हैं, तब भी ये रीअश्योरेंस है हमारे लिए, विश्वास है, विश्वास योग्यता परमेश्वर की ओर से है, यीशु मसीह की ओर से है कि वो हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ है। मेरे प्रियो, मुसीबतों का मतलब ये नहीं होता कि परमेश्वर हमसे नाराज है, और संपन्नता का मतलब नहीं होता कि परमेश्वर हमसे खुश है। उसी तरह धन होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारे को परमेश्वर का फेवर है, पक्ष में है हम उसके। और गरीबी का मतलब होता है कि वो हमारे विरोध में काम कर रहा है। बीमारी का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा विश्वास जो है वो कम हो गया है या है नहीं। और अच्छी सेहत का मतलब ये नहीं होता कि हमारा विश्वास बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मत्ती की इंजील उसके 5वें की 45वीं आयत में कहते हैं कि प्रभु जो है वो अपना सूर्य धर्मी और अधर्मी दोनों पर उदय करता है। बट विडम्बना इस बात की है कि जो ये जीवन के तूफान हैं, ये कई बार मेरे और आपके लिए आशीषें लेके आते हैं। जब मेरे और आपके जीवन में कई चीज़ें खराब चल रही होती है, विपरीत चल रही होती है, हमारे जो दिल या मन या दिमाग होते हैं वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं। और एक बात और है कि एक टूटा जो हृदय होता है वो एक बहुत अच्छा दरवाज़ा होता है जिससे प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आ सकता है। मैं इस चीज़ को दोहराऊंगा कि एक टूटा जो हृदय होता है वो एक अच्छा दरवाज़ा होता है जिससे प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में उसको एंट्री मिलती है, वो आ सकता है। वो मेरे और आपके जीवन के हर तूफान में आता है और मुझसे आपसे कहता है, ढांढस बांधो, डरो मत, मैं हूं, मैं हूं। और आखिर में एक चीज पे और गौर करेंगे, पतरस जो है वो जब सब कुछ देखता है तो कहता है, यदि तू है तो मैं भी आऊंगा तेरे पास। और वो अब नाव से बाहर आ जाता है। विश्वास की एक परिभाषा, बहुत सी परिभाषाएं हैं, बाइबल में भी हैं और दुनिया में भी हैं, बट एक विश्वास की बड़ी अच्छी परिभाषा वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान लगाओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑन जीसस। मैं और आपका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है
और खासकर जब भटकता है, जब जीवन के तूफान मेरे चारों तरफ आ जाते हैं और हम डगमगाने लगते हैं। ये कहानी मुझे और आपको बताती है, प्रभु यीशु मसीह मुझे बताना मांगते हैं कि वो मेरे और आपके साथ है। जीवन के हर तूफान में मेरे और आपके साथ है। ये तूफान कभी ना कभी मेरे और आपके जीवन में आते हैं। आज शायद मेरे और आपके ऊपर वो सूर्य चमक रहा है और कल ही या अगले पल में मैं और आप हवा और तूफानों का सामना कर सकते हैं। कभी भी मेरा और आपका जीवन पलट सकता है। जो पतरस के साथ हुआ वो कभी भी हो सकता है। कुछ क्षण के लिए पतरस ये भूल गया कि प्रभु यीशु मसीह की तरफ वो जा रहा है, वो उसको देख रहा है, वो उसकी चिंता कर रहा है, उसी ने उसको बुलाया है। बट वो अपने आप को देखने लगा। उसने नीचे देखा, अरे पानी पे मैं चल रहा हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है कि मैं पानी पे चल रहा हूँ। उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था या ध्यान था वो प्रभु यीशु मसीह से हटा और वो डूबने लग गया। और उसी वक्त उसने सबसे छोटी प्रार्थना की। कोई बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करी, बड़ी छोटी प्रार्थना उसने करी, हे परमेश्वर मुझे बचा, हे परमेश्वर मुझे बचा। 30वीं आयत में कहता है, हे प्रभु मुझे बचा। और यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। सिर्फ पतरस को ही बोला, सारे चेलों को नहीं बोला, सिर्फ पतरस को बोला। पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसे बचाया और फिर उसको हल्की सी डांट लगाई कि तूने क्यों संदेह किया। बट फिर भी कहने की बात यह है कि पतरस फिर भी बहुत बोल्ड था, उसमें हिम्मत थी, उसके अंदर विश्वास था। मेरे ख्याल में जो छोटा विश्वास है वो विश्वास ना होने से तो फिर भी अच्छा ही है जो पतरस ने दिखाया। और 32वीं आयत कहती है कि जब वो लोग नाव पे आ गए तो जो तूफान था, जो हवा थी, वो थम गई। जब प्रभु यीशु मसीह आ गया तो सब कुछ थम गया, शांति हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया कि हवा और पानी के ऊपर मेरा अधिकार है। और वो अधिकार सिर्फ पानी और उस पे नहीं है, हवा पे नहीं है, बल्कि जो सताव में और आप अपने जीवन में किसी भी तरह का महसूस करते हैं तूफानों का, उस पर भी उसका अधिकार है। और अंत में मैं और आप अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हैं कि कौन अच्छा था, कि पतरस जिसने हिम्मत करी, जिसने कोशिश करी और बाहर आया, हालांकि वो डूबा, या कि वो 11 जिन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं करी, जो दूर से बैठ के देख रहे थे। इसीलिए हम उन 11 चेलों के बारे में कभी प्रचार नहीं होता है, हमेशा पतरस के लिए ही प्रचार होता है कि पतरस ने हिम्मत दिखाई और वो पानी पर चल के गया, चाहे बेशक, क्योंकि वो जो दूसरे चेले थे वो अपने आप को सेफ रखे थे, वो सुरक्षित थे नाव में। सिर्फ पतरस ने ही जोखिम उठाया। इसीलिए मैं और आप आज 2000 साल के बाद भी पतरस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पतरस ने वो जोखिम उठाया। ये बात बिल्कुल सही है और सच है कि पानी पे चलना बहुत जोखिम का काम है। और ये भी हो सकता है कि मैं और आप डूबने लगे, लेकिन जब तक मैं और आप हिम्मत नहीं करेंगे, अपने नाव नहीं छोड़ेंगे, अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे, हम कैसे पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका हाथ थाम के मुझे उठाने के लिए तैयार है। आइए अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि जीवन के हर तूफान में आप हमारे साथ हैं। आज के प्रभु जी संदेश के द्वारा आपने हमें सिखाया, बताया प्रभु जी कि आपने कभी हमें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ा है। आप सदैव हमारे साथ हैं। आपका नाम इमैनुअल है, यानी परमेश्वर हमारे साथ। हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें। जीवन के जब हम इन कठिन पलों से गुजरते हैं हम सब प्रभु जी, तो आप हमें हिम्मत दें, ताकत दें। जैसे आपने अपने चेलों को बोला कि ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। आज तरह तरह के डर और ख्याल हमारे जब दिमागों में आते हैं, जीवनों में आते हैं, अपने भविष्य को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, इस बीमारी को लेकर के जो हमारे चारों तरफ फैली, तो प्रभु जी हम डरते हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रभु आप हमारे साथ हैं। आपने बोला है कि ढांढस बांधो, हिम्मत रखो। प्रभु जी हमें वो आनंद दे, हमें वो हिम्मत दे, हमें वो सामर्थ्य दे, ताकि प्रभु जी जीवन की इन परिस्थितियों का, इन तूफानों का सामना हम आपके साथ, आप में मिलकर होकर के करने वाले हो सके। और हमारा विश्वास है प्रभु जी कि आपका अधिकार है हर तूफान पे जो हमारे जीवन में आता है। हम सबके साथ होना, अपना पवित्र आत्मा हम सबको देना। सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है।
उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।